काय चिकित्सा में ही स्पेशलिस्ट इन आयुर्वेदा ऑर्थो केयर प्रैक्टिस. He chairman IDRA. He is author of many books like 50 नंतरचे व्यायाम, मसाज तंत्र आणि मंत्र. वो अतिथि संपादक हैं जो श्री धन्वंतरी आयुर्वेद पत्रिका निकलती है उसके. और प्रशांत सुरू सर से उन्होंने ऑलरेडी उनका फेलिसिटेशन कर दिया है. और जोशी सर, आपके परमिशन से क्या हम आगे शुरू कर सकते हैं? थैंक यू सर. With the permission of Mr. Co-Chairman, it's my really honor to invite a very eminent personality of Ayurveda, Vaidya Rajendra Prasad sir. He is BMS from Coimbatore. He is director Saigram Ayurveda Hospital and Research Center Coimbatore. He is CEO Kapil Ayurvedic Hyderabad. He is chief advisor Shri Welcome sir. Sri Prakash Ayurved Hospital, Andhra Pradesh, and he has worked with AVP. So it's our honor to welcome him, and I request him to share his all Ayurveda knowledge with all of us. Thank you, sir. Thank you. On the dais and off the dais. First of all, I should pranam my father and mother, Guru, Sri Krishna Kumarji, and we have one more Guru here, Prashant Suruji. आवाज नहीं आ रहा है अभी? It is a great honor for me to be with you today. The topic itself is something undigestible for me, first of all, because we have never attempted to understand Panchamahabhuta theory in full. Rather, we have short it into Tridoshas. Anyhow, my topic today I have selected is Panchamahabhuta, the overlapping magisteria of medicine and spirituality. Let me begin. Shastra, usually translated as a science, literally means that which protects us from dukkha, misery, by teaching what is suitable to us. See, there are two types of sukha, what we meant to. One is to attain sukha, one is sustain sukha. For these two, we have to keep away dukkha. The Shastra that Dharma Artha Sukha Sadhanam, Dharma Artha Sukha Sadhanam means the enabler of life's moral, material and spiritual goals has more than to offer than uniquely not just medicines and therapies. It is a stream of knowledge that originates in the Veda, uniquely flows, nourishing health and meets other streams at a common point, the sea of ultimate actualization of human life. Human life is viewed from two sukhas, what just now I have explained. Perspectives that which immediately, contextually and temporarily experienced, and that which gradually, ultimately and permanently experienced. The first sukha is that which is attained by maintaining, regaining of health. The second sukha is that which is attained by what we do and maintain and regain with the regained health. The human body is the human body is the to pursue to attain life's goal and thus experience these states of happiness. And it is this body perfected by Ayurveda that is to be used to make its purpose served. The human body is thus base for action and benefaction that physical and metaphysical in nature. Ayurveda's focus as a medical system is one of the obvious human body and the medicines. No, sir, the first slide is still continuing. I am just giving an introduction, so let it be, no problem. Ayurveda's focus as a medical system in it is on the obvious, the human body and the medicines meant for it, without ignoring the significance and influence of the obscure. That is how the effective Vaidya lands in the consciousness of the patient
during his healing process. Understand the influence of planets on disease and its prognosis, and initiates actions against unseen spiritual impact on health while remaining a hardcore clinician working with psychologists and pathologists at the physical level. Thus, this human body is also the tool for the Vaidya to medically absorb and to act and to make all this possible. As is intended in a classical Ayurveda way, it is in that Ayurveda way the medical and spiritual benefaction manifest in the human body. Thus, Panchamahabhuta, the constituting elements of Stula Sharira, the physical body that eats, ends, and evolves, becomes the tangible meeting point for the both medicine and spirituality. The body also happens to be an entity that is not different from the material world around, which is also made up of the same 5 constituents. Man exists as a member of a large joint family called Loka, sharing a common Panchabhautik identity with other members of the family, the plants, animals, minerals, and nurture a harmonious, independent, and inseparable relationship with them. The awareness of this connected existence with the larger universe enabled by Panchamahabhuta itself is considered to be imparting an eternal peace. Now coming to the religion conflict and the resultant mind-body. See, the problem with the intention to position Ayurveda as per the standards set by the Western medicine lies in the fundamental mismatch in the every concepts of the body and the factors that influence its cause. Upkeep and dissolution, in this incompatibility, we are primarily due to the prevalence of science-religious conflict. It is interesting to note that origin of mind-body dualism is explained molecular emotion. If psychological contributions to physical health disease are viewed with suspicion, the suggestion is that the soul, the literal transition of psyche, matter is considered downright absurd. For now, we are getting into the mystical realm where scientists have been officially forbidden the thread over the since the 17th century. I think it is already written there. The first of its kind dissection started with the permission of the church to understand the human body in the 17th century. Until before that and after that, there's next 2 centuries, there has been a lot of changes that has been come. A lot of overlapping has come on top of that. Next slide. This amicable settlement had no sustained effect as the conflict continued, and so did the effort to counter, solve or nullify it. It was in order to ensure a division of human experience into 2 distinct separate spheres that could never overlap that Stephen Jay Gould came up with the non-overlapping magisteria as the blessedly simple and entirely conventional resolution to the supposed conflict between science and religion. The word magisteria is derived from the different notion of teaching for a. It is a Latin word called teacher, teaching. Science, religions conflict should not exist as they have their own magisterium or domain of teaching. He said, the net of science covers the empirical universe, what it is made of, and why does it work in this way. The net of religion extends over the questions of moral, meaning of and values. These 2 magisteria do not overlap, nor do they encompass all the inquiries. We need to appreciate the greatness of Indian knowledge systems that have a common origin, the Veda, and a common goal, the actualization of human life. There is an overlapping magisteria that is understood and respected, and without any conflict, these knowledge streams maintain a harmonious and mutually contributing relationship. The classical Ayurveda text even encourages a student to study other Shastras as well, in order to perfect his or his understanding of his medical knowledge. See, we have, that is very commonly seen now in our Ayurvedic text, we are learning other medical systems also. So it is already a coexistence of the other
first you have to study a text. If you understand, to get more knowledge, you can study many such streams of. It is the form here that we try to understand the special status of Panchamahabhuta as a mysteria where medicine and spirituality overlap. Here we are using the terms medicine and spirituality instead of science and religion to make a context more meaningful. I would like to just a conflict of something, how spirituality overlaps the medicine. Maybe many of you may not be knowing, but Sir Deshmukh sir and Prashant Suru knows. Our Guru, Sri Krishna Kumar ji, had 2 times of transplantation of his kidneys. First time, it is very difficult. A person undergoes 2 times and had an active life. And he has conducted more than 500 programs. He has attended more than 500 marriages. He has attended more than 1,000 functions. And it is not possible, that kind of stress, once you undergo such. So there the spirituality is overlapping the medicine. Medicine would have not made him to survive. So we always feel how these both interacts. We can always project, if a medicine is only making him to survive, he could have not survived, because after kidney transplantation, he was given immunosuppressants. If he comes to your marriage, he will eat your food, he will drink your water. More than 14, 15 years, very actively he was there. So we have beyond the medicine, beyond something, there is spirituality that overlaps the medicine. Despite the comprehensive and holistic identities of Ayurveda, the text advises the clinician not to pursue beyond Panchamahabhuta that appears as a contradicting dictum, considering the metaphysical possibilities of Ayurveda. A physician's scope and range of intervention, whether to impart the immediate sense of health or to facilitate the ultimate sense of happiness, are fully bound to the Bhuta. The body is also a tool for the Vaidya to accomplish the responsibility of a healer. The journey of healing from a formal doctor-patient relationship to a soul connection and from a diagnostic observation of a therapeutic administration is through the platforms and presentations of Bhuta. Whether it is Charaka, that the physician interested in understanding the Roga Tattva should use the sense organs for observing the Indriya Tattva, Indriyat, and in the patient's body, or even in the modern books, the Galen he has mentioned for your diagnosis. See, now we are not using it in the books where it is written to taste even armpits, something to taste the sweat to understand Prameha Roga. In modern books, not in the immediate, but the past editions it is. So the sense organs, the utilization of Panchendriyas, it has also been incorporated at some time in the modern medicine. Slide 6. I think we have one. The prime importance in this context is the relationship between Brahmanda, the macrocosm, or Pindanda, the microcosm. With this later being considered as the replica of the former, the macrocosm of the large organized whole Pindanda is the smaller representation of the large whole having its characteristics. So, next slide. I'm just rushing because the time is on. Kshetra. See here, whether it is a house or a temple, or how these Panchamahabhutas are being. So Akasha, where you have mantra, the Ucharana, or the bell you ring there, or Shank you utilize. So a Shabda is already been generated. Agni, you light the lamp, you light Agarbati or something, or Homa. There's so many things that we utilize in the Jala. There's you create a Tirtha with the Jala, and Prudvi,
This is Tatra Gandhavati Prithvi. So Prithvi means solidity. The temple itself is the Prithvyamsha or the house, whatever it is. Then we utilize flowers for, or maybe the chandan, whatever it is, which has a smell. And then Vayu is the thing that exists there. So all the whether it is Gruha or temple, whatever it is, everything is made up of this Panchabhautik theory or Pancha. And even where the Kshetra is a Tangle symbol, I have made it into little more words, Stula Sharira or Sukshma Sharira. And to conclude it, what is focused upon should not be the cause and conflict to the other. Say dharma or moksha, our material pursuit should not hinder our spiritual progress. That our spiritual possibilities are to be actualized without neglecting the material needs, and that both the material and spiritual realms coexist. It is the sustained of dharma. As said in the beginning, the body is the tool to make all this possible, and the Pancha Mahabhuta that constitute the body thus happens to the Magisteria that to see the knowledge and action of medicine and spirituality overlap with a commitment to the coexist without conflicts. Thank you. And there is a full presentation, that article is there in the magazine that you have received. You can go through that. Thank you. Thank you, Rajendra sir, for your very insightful presentation. It was really thought-provoking. I thank you sincerely. Please accept our sincere gratitude. Thank you, sir. दोस्तों, हमें जोरदार तालियों से स्वागत करना है इस सेशन के चेयरमैन सर का, बिकॉज ही इज ऑल द वे फ्रॉम जयपुर, डॉक्टर प्रवीण सावंत सर. बिफोर दॅट यांचं फेलिसिटेशन त्यांच्या हस्ते करू दे ना. चेअरमॅनचं करून घे, तुम्ही करून घ्या. Sir is BMS, MD and PhD in Kai Chikitsa. He is Associate Dean in UG in National Institute of Ayurveda, Jaipur. He is recognized PG and PhD guide. He is member of Academic Council and member of Board of Studies, and numerous research projects are completed under his eminent guidance. Thank you, sir. Welcome to this conference. And I request you to felicitate Mr. Rajendra Prasad, sir. Thank you, sir. Friends, please help me welcome to call next speaker. And next speaker is Vaidya Megha Jagtap. She is MD Ayurveda. She has done MA in Yoga. She has done BA in Sanskrit. She has done PG Diploma in Nutrition and Diploma in Spiritual Counseling. She has got Guruvarya Panchakarma Shiromani P.T. Joshi Puraskar. She has written many books like Kimaya Ayurvedachi, Guru Killi, Swasthya Rakshanaji. So let's make a huge round of applause for Vaidya Megha Jagtap ma'am. And she is taking a topic, Manas Vikara and Pancha Mahabhutas. Thank you. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. All the dignitaries present on the dais, my Guruvarya, my dear colleagues and my dear friends, I sincerely offer my pranam to all of you, and without wasting much more time, I am directly proceeding towards the topic.
Today, I am here to discuss few of my cases of Manas Vikara that have been treated with Panchabautik Chikitsa. But before proceeding that, we will just quickly touch some of the basics of Manas and Panchabautik Chikitsa. Here we can see that what is the importance of मन. हमारे शास्त्र में मन का जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे महत्वपूर्ण एक बात आती है कि आयुर्वेद शास्त्र हैज़ एक्सेप्टेड एंड गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस फॉर द सेपरेशन ऑफ सेपरेट अस्तित्व ऑफ शरीर एंड मन. बिफोर दैट ये भी हमें मानना होगा कि शरीर और मन का इनसेपरेबल कनेक्शन भी हमारा आयुर्वेद शास्त्र मानता है. ये बोलने से पहले मैं और एक बात आपसे बोलना चाहूँगी कि मैंने ये टॉपिक चुना इसलिए है क्योंकि मानस शास्त्र पे अभी मेरा काम शुरू है और शरीर को लेकर जितने भी व्याधियों की चिकित्सा शुरू थी उसमें मानस रोग के वारंवार रुग्ण आ रहे थे. और जब ये टॉपिक पे क्योंकि अप्पा और सुरू मैडम गुरु है और सभी जगह पंचभौतिक तत्वों को देखने का आदेश है हमारे गुरुओं का, तो कहीं ना कहीं मन के बारे में भी पंचभौतिक तत्व को देखना पड़ेगा. ये एक विचार, सूक्ष्म विचार एक दिन नींद में मेरे आया और उसी समय मैंने 3:30 बजे उठकर अप्पा की बुक्स खोले और मन का जो खजाना यहाँ पर मिला है मैं आपके सामने वो रख रही हूँ. शायद मैं उस पर सभी कुछ तो बोल नहीं पाऊँगी लेकिन हिंट आपको दे दूँगी तो आप भी सभी विद्वज्जन हैं उस पर विचार कर सकोगे. तो हमारे शास्त्र में सत्वम उपपादुकम कहा गया है. सत्व को एक कोऑर्डिनेटर कहा गया है, एक ऐसा भाव कहा गया है कि जो जीवित जो शरीर होता है उसमें रहने वाला ये बहुत इम्पोर्टेंट भाव है. ये हमें याद रखना पड़ेगा. हम जब मानस चिकित्सा करते हैं उस समय भी हमें इन बातों का ध्यान रखना है. ये बातें ध्यान में रखकर ही चिकित्सा करनी है. यहाँ पे त्रिदंड में जो लाइफ के होते हैं उसमें भी सत्व इज इंक्लूडेड. और ज्ञान ग्रहण प्रक्रिया भी हमें मानस चिकित्सा करते समय बहुत इम्पॉर्टेंट है जो याद रखनी है क्योंकि आत्मा मनसा संयुज्यते मनः इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन. ये अगर हम प्रोसेस जानते हैं, याद रखते हैं तो ही हम आगे मानस चिकित्सा कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ पर आत्मा, मन, इंद्रिय, अर्थ ये 4 एस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब रुग्ण हमारे पास मानस रोग के लिए आता है तो यहाँ किस चीज़ में कहाँ पर डिफेक्ट है, मैं डिफेक्ट बोल रही हूँ लेकिन डिफेक्ट नहीं रहता है, कहाँ पर विकृति है वो देखकर हमें चिकित्सा के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा. पंचभौतिक चिकित्सा, पंचभौतिक एस्पेक्ट भी मन का होता है. ये मैं भी इतने साल से प्रैक्टिस कर रही थी लेकिन मैंने कभी उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था. लेकिन जैसे मैंने बताया कि अचानक 3:30 बजे ऐसा लगा कि नहीं, अप्पा ने मन का भी कहीं ना कहीं पंचभौतिक हिसाब से वर्णन किया होगा. तो जब किताबों को खोल कर देखा तो ये खजाना जो मुझे मिला है वो मैंने आपके सामने रखा है कि मन के जो ये होते हैं 4 एस्पेक्ट होते हैं यानी जिसे हम चित्त चतुष्टय कहते हैं. मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार. यहाँ पे उसका कंपोजिशन दिया है यानी हर एक जो एस्पेक्ट है, हर एक जो फैकल्टी है उसका हर एक का पंचभौतिक कंपोजिशन हमें दिया गया है. ये किस लिए दिया गया है हमने कभी ध्यान नहीं दिया है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था. लेकिन जिस समय ये समझ में आया कि ये क्यों दिया गया है उस समय बहुत आनंद हुआ था. आप देख रहे हो यहाँ पर, मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी. ईच ऑफ द फैकल्टी हैव इट्स ओन स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ महाभूता. लेकिन यहाँ पे मैंने जल महाभूत को हाईलाइट किया हुआ है. हम सब जानते हैं कि मन का और जल महाभूत का बहुत ज़्यादा करीबी संबंध है. हमारे शरीर में 70% वाटर होता है और उसी शरीर में हमारा मन भी होता है. और हम ये भी सब जानते हैं कि जब समंदर में भरती आती है, पानी का स्तर बढ़ता है, उस समय हमारे जो मानस विकार होते हैं उनमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं. उसी प्रकार हमारे शरीर में भी जब जल तत्व में विकृति आती है, जल तत्व कम ज़्यादा होता है, उस समय भी मानस विकार के जो लक्षण होते हैं उनमें बदलाव मिलता है. ये मैंने खुद मेरे प्रैक्टिस में देखा हुआ है. तो इसीलिए आप देखिए रस धातु है, शुक्र धातु है जो जल महाभूत से संबंधित है. वो सभी जब विकृत हो जाते हैं तो उस समय भी उन स्रोतसों के, उन धातुओं में जहाँ पर जल तत्व है उनके विकृति में भी हमारे मन पर उसका असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. मुझे लगता है ये हिंट आप लोगों को काफ़ी है. मैं आगे बढ़ती हूँ. नेक्स्ट.
नहीं, एक मिनट का। मन के बारे में हम बोल रहे हैं और सत्व रज तम की बात नहीं आई, ऐसा नहीं हो सकता है। हम सब जानते हैं कि जो मन होता है उस पर सत्व रज तम ये 3 गुण होते हैं। सत्व जो होता है इट इज़ अ फैकल्टी दैट कनेक्ट्स अस विथ प्योरिटी। मुझे पावित्र्य शब्द बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्योरिटी ऑफ माइंड, लाइटनेस, हैप्पीनेस, ये सभी जो होते हैं वो सत्व से रिलेटेड होते हैं। लेकिन रजतम को दोष क्यों कहा गया है, यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। बाकी सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि त्रिगुणों का क्या संबंध होता है पंचमहाभूतों के साथ, वो दिया है। लेकिन मैंने रज और तम के बारे में यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है कि रज और तम जो है उसका, रज जो है उसका अग्नि और वायु महाभूत के साथ संबंध होता है। और उसमें भी अग्नि जो होती है वो हमेशा प्रकाशक होती है, हमें ज्ञान की तरफ लेकर जाने वाली होती है। और वायु जो होता है वो चंचलत्व उसका गुण होता है। लेकिन जब भी रजोगुण विकृत होता है तो वायु के बड़े हुए वायु प्रवर्तक है इसलिए, और वायु और अग्नि ये दोनों ही परम मित्र हैं। तो इनके लक्षण जो होते हैं, जब भी अग्नि तत्व शरीर में विकृत होगा, कहीं ना कहीं रजोगुण भी विकृत हुआ आपको मिलेगा। तो उस हिसाब से भी हमें जब चिकित्सा करते हैं तो सोचना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि तमोगुण जो है वो पृथ्वी और जल महाभूत से बना हुआ दिख रहा है आपको। और पृथ्वी और जल ये दोनों ही तत्व मन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम पृथ्वी तत्व के लिए कभी सोचते नहीं है मन के बारे में, वायु ही हमारे सामने आता है। लेकिन प्राणवायु का जो इंद्रिय ध्रुक, चित्त ध्रुक, ये शब्द आए हैं। तो ध्रुक इज धारण, और धारण ये तत्व, धारण ये कर्म कभी भी पृथ्वी महाभूत के सिवाय नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमें जब भी मानस रोग का कोई रुग्ण हमारे पास आता है तो कहीं ना कहीं धारण ये कर्म विकृत है क्या वो देखना है। कहीं ना कहीं अगर लगता है कि धारण ये कर्म विकृत है तो हमें पृथ्वी महाभूत के बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर आपको जल तत्व की विकृति है तो वो कैसे पहचानना है, मैं ये मेरे अनुभव से बता रही हूँ आपको। मैंने कहीं ये किसी किताब में नहीं पढ़ा है। तो जल तत्व जब विकृत हुआ दिख रहा है तो उस समय जल की एक अपनी लेवल होती है, यानी वो एक लेवल पे रहता है पानी, तभी वो सामान्य कर्म दिखाता है। लेकिन जब वो लेवल कम ज़्यादा हो जाती है, जैसे शरीर में कम ज़्यादा होती है वैसे ही सृष्टि में भी कम ज़्यादा होती है। तो हम देखते हैं बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, वैसे शरीर में भी ये जल तत्व जब कम ज़्यादा हो जाता है, मन का जल तत्व जब ये कम ज़्यादा होता है तो उस समय हमारे जो रुग्ण होता है उसमें विचार जो दिखेंगे वो कभी पॉजिटिव दिखेंगे, कभी निगेटिव दिखेंगे। तो ऐसे रुग्णों में मैंने बहुत बार ये देखा है कि सुसाइडल टेंडेंसीज जो होती है वो हमेशा जल तत्व की विकृति के कारण होती है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। आचार्य, हमारे शास्त्र में आचार्य चरक कहते हैं कि रज और तम ये दोष है और इसी से ईर्ष्या, क्रोध, भय, मोह, द्वेष, मत्सर ये सभी रोगों का निर्माण होता है। और इन्हीं को उन्होंने आगे मैं बताऊंगी मानस विकार कहा है। हमारे सामने क्या होता है, मानस विकार का मतलब होता है उन्माद, अपस्मार, अतत्वाभिनिवेश, ADHD एंड सो ऑन। मॉडर्न की तरफ नहीं जाना है। मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ मानस विकार की, मैंने ये बेसिक लिया है जो मेरे शास्त्र में बताया गया है। और आप देखोगे मैं आगे वो भी बताऊंगी कि किस प्रकार आज हम सोसाइटी में जो देख रहे हैं ना, मॉडर्न के जितने भी मानस विकार देख रहे हैं वो सभी भय, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, मूढ़ इच्छा इसी से निर्माण हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर मानस विकारों को, क्योंकि मुझे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में भी बोलना थोड़ा अच्छा लगेगा, सत्व रज तम का जो बैलेंस अवस्था है दैट इज विधेय सत्व, हमारे शास्त्र में शब्द आया है। ये विधेय सत्व यानी कंट्रोल्ड माइंड है। ये विधेय सत्व यानी क्या है कि सत्व रज तम की वो अवस्था है जिसमें मन जो होता है वो प्राकृत होता है और हमारी मेंटल हेल्थ नॉर्मल होती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि विधेय सत्व कैसे काम करता है। अब देखिए मानस विकारों को जब ट्रीट किया जाता है पांचभौतिक चिकित्सा के तौर पर, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत जो पांचभौतिक चिकित्सा का है वो मैंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि बहुत सभी सिद्धांतों का चर्चा करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम महाभूतों को कैटेगराइज करते हैं लघुत्व और गुरुत्व के बेसिस पे, तो दो इसमें हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। गुरु महाभूत जो है वो पृथ्वी और जल महाभूत है, और लघु महाभूत जो है वो वायु और आकाश महाभूत है। और अग्नि तत्व जो है या अग्नि महाभूत जो है वो इनके बीच में है। वो ये दोनों कैटेगरीज को वो मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसीलिए हम अग्नि की चिकित्सा ही फिजिशियन करता है। आयुर्वेद फिजिशियन क्या करता है तो वो अग्नि की चिकित्सा करता है, ऐसे कहते हैं। तो वो सिर्फ शरीर की चिकित्सा के लिए नहीं है, वो मन की चिकित्सा के लिए भी है।
और ये दोनों कैटेगरीज को हम यूज़ कैसे करते हैं कि अगर एक कैटेगरी के महाभूतों के कारण अगर पैथोजेनेसिस हुआ है, संप्राप्ति घटित हुई है या फिर कारण परंपरा वैसी है, तो फिर हम दूसरे साइड का जो महाभूतों का कैटेगरी है उसके गुणों का उपयोग करके संप्राप्ति भंग करते हैं। ये आगे आने वाला है, इसलिए मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देखिए सत्व रज तम किस प्रकार से मानस विकारों को निर्माण करते हैं वो मैंने शॉर्ट में दिया हुआ है। यहाँ देखिए हमारे शास्त्र में ये कहा गया है कि अगर सत्व गुण बहुल रजतम है तो व्यक्ति जो होता है वो सुख की प्राप्ति करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिटैचमेंट। क्योंकि मानस भाव अगर सभी प्राकृत रहेंगे तो हम सुख की वैसे ही प्राप्ति करते हैं, लेकिन अगर सत्वहीन रजस तमस हो जाते हैं, हमने देखा कि रजस और तमस क्यों और किस प्रकार से विकृत होते हैं महाभूतों का, उसके साथ क्या कनेक्शन है। तो अगर ये सत्वहीन रजस तमस हो जाते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि व्यक्ति जो होता है वो अटैचमेंट की तरफ बढ़ता है, सभी चीज़ों के बारे में उसको बहुत ज़्यादा लगाव निर्माण होता है जो दुख का कारण है, और वही प्रज्ञापराध का भी कारण है। आगे जाकर हम देखेंगे कि धी द्रुति स्मृति भी उसी के कारण ये होती है, दुष्ट होती है। यहाँ पे दिया हुआ है कि किस प्रकार से मूढ़, इच्छा, द्वेष ये सभी निर्माण होते हैं और यही आगे जाकर मानस विकार करते हैं। धी द्रुति स्मृति विभ्रष्ट होने के कारण प्रज्ञापराध से इन सभी जो मानस विकार है इनका जन्म होता है। चाहे आप नाम इनको आधुनिक तौर पे कोई भी दो, ADHD दो, श्रिजोफेनिया दो, इसमें रखकर अगर अपने शास्त्र के हिसाब से चिकित्सा करते हैं तो पक्की उस पर सफलता मिलेगी। नीचे देखिए मैंने दिया हुआ है डिनायल, क्राइम, ये सभी हम जो आज सोसाइटी में देख रहे हैं ये सभी वही क्रोध, इच्छा, द्वेष, जो मूढ़ सभी भावनाएं हैं उनसे निर्माण हुए ये मानस विकार है, जिसे आज मॉडर्न अलग अलग नाम देता है। हमारे आचार्यों ने ईर्ष्या, द्वेष, भय, कोप, क्रोध ये नाम दिए हुए हैं। नेक्स्ट। मैं डायरेक्टली अभी केस पे आ रही हूँ। देखिए ये पहली जो केस है, ये पहले केस में हम लोग देख रहे हैं 33 ईयर्स ओल्ड लेडी है जो मैरिड थी। ये पार्लर में काम करती थी और पार्लर में वो काम करती थी, तो उससे हर समय ये भावना होती थी कि वो जैसे ही नीचे झुकती थी उसे लगता था कि पीछे से मेरे कोई आकर मेरे हेड पे कोई प्रहार कर देगा। इसके लिए कोई शारीरिक बाकी दूसरी कोई उसको शारीरिक कष्ट नहीं था, और उसके साथ में जब ये भावना निर्माण होती थी तो पाल्पिटेशन एक लक्षण रहता था और इसके साथ साथ अनिद्रा, क्योंकि वो भय की भावना थी, इसलिए ये दोनों एसोसिएटेड सिम्टम थे। ये रुग्णा में जब हिस्ट्री ली गई तो इसमें 3 एबॉर्शंस की हिस्ट्री थी। चिकन पॉक्स जो अप्पा ने कहा है क्षारधर्मी उष्णता को बढ़ाने वाला व्याधि है, वैसे हिस्ट्री थी। और जब एग्जामिनेशन किया गया, नादा परीक्षा की गई, तो इसमें यकृत घन, प्लीहा आकाशीय थी और दोनों मूत्रपिंड पर तीव्र स्पर्शासहत्व था। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब यहाँ पे देखिए संप्राप्ति और संप्राप्ति भंग कैसे करना है। तो अगर आप मैंने जितने भी हिस्ट्री में दिए हुए हैं वो सभी क्षारधर्मी उष्णता को बढ़ाने वाले हेतु है। एबॉर्शंस है जो पृथ्वी महाभूत को क्षय करता है, क्षारधर्मी उष्णता बढ़ती है। चिकन पॉक्स हुआ है वो भी सभी क्षारधर्मी उष्णता के हेतु है। इसके कारण क्या हो गया है, देखिए यहाँ पर संप्राप्ति में आपको दिख रहा है कि पृथ्वी तत्व जब कम हो जाता है तो स्थिर, स्थूल, स्निग्ध, द्रव, ये सभी जो गुण हैं उनका भी क्षय हो जाता है। और ये जब क्षय हो जाता है तो वायु महाभूत के गुण बढ़ते हैं, और वायु जब बढ़ता है तो उसका डायरेक्टली संबंध रजोगुण के साथ होता है, और उसके कारण भय की भावना निर्माण हुई है। बस यही संप्राप्ति लगाकर मैंने संप्राप्ति भंग करने के लिए, क्योंकि क्षारधर्मी उष्णता बढ़ी है तो अम्ल धर्म को यूज करना है, इसलिए पहले की स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड। हाँ, नेक्स्ट नाही, त्याच्या आधीच अजून आधी, हां बस केस 1। हाँ, देखिए यहाँ मैंने धान्यक्वाद दिया हुआ है जो अम्लधर्मी करके काम करता है। रजनी योग दिया है जो हरिद्रा और गिरीज का कॉम्बिनेशन है, जो अम्लधर्मी जो यानी प्लीहा पर काम करेगा। श्वद्रंष्टादि गुगु ये भी पृथ्वी आप महाभूत बढ़ाने का काम करता है। और साथ ही साथ में मैंने गिरीज का उपयोग किया है। चंद्र प्रभावटी के बारे में यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी। चंद्र प्रभावटी मानस विकारों में बहुत अच्छी तरह से काम करती है, शुक्र धातु पर काम करती है। चंद्र प्रभा जो है वो खुद पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी बहुल तत्व है। इसका उपयोग शुक्र धातु, देखिए यहाँ पर जब भय की भावना रुग्ण में होती है उस समय धैर्य, प्रीति, चवन, ये हमारे शुक्र के गुण में भी बताया, कर्म के में बताया गया है। हमें वो कभी याद नहीं रहते हैं, हमें सिर्फ प्रजनन ये उसका कार्य याद रहता है। तो धैर्य,
यहाँ पे कम हुआ है, इसलिए भय निर्माण हुआ है, ये समझकर चंद्रप्रभावटी का मैंने यहाँ पर उपयोग किया है। और बिलीव मी, चंद्रप्रभावटी देने के बाद 8 दिन के बाद ही रुग्ण में मुझे 100% उपशय मिला है। और ये मैंने मेरे गुरु के मार्गदर्शन से ही दिया था और इसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद मानस विकार में मैंने चंद्रप्रभावटी का उपयोग करना शुरू किया, उसकी कॉन्सेप्ट समझकर। टाइम तो ठीक है, एक सेकंड केस, नेक्स्ट केस ले लेती हूँ। नको त्याच्यानंतर पुढची घ्या, सांग थोड़ी वेगळी आहे अजून पुढे। हाँ, ये देखिए यहाँ पर एक ये रुग्ण जो है यहाँ पर सब डिटेल दिए हैं। 18 साल की एक लड़की थी, अनमैरिड लड़की थी। ये लड़की इस लड़की के फादर उसे मेरे पास लेकर आए थे और फादर ने बताया कि ये लड़की ने अपने मदर पे 2 बार अटॅक किया था पेस्टल के साथ, म्हणजे पाटा वरवंटा जो असतो त्यांनी तिच्या आईला 2 वेळा हिट करायचा प्रयत्न केला। ही नॉर्मल गोष्ट नहीं है। जब क्रोध निर्माण होता है और वो अति मात्रा में होता है तब इस प्रकार की घटनाएं होती है, हिंसक घटनाएं होती है। ये बच्ची को नहीं पता था वो ये सब क्यों कर रही है। जब सब एलोपैथी की ट्रीटमेंट हो चुकी थी, एलोपैथी देने के बाद ड्राउजीनेस, सोकर रहना यही होता था। और जब उनको पता चला कि ऐसा कुछ आयुर्वेद में है, लेकर आए। चिकित्सा करते समय मैंने सिर्फ और एक बात, रुग्णा जो थी वो बिल्कुल मेडिसिन लेने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन किया है ऑन बेसिस ऑफ पांचभौतिक कॉन्सेप्ट। आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने उसे जटामांसी का धूप बना कर दिया था, जो लगाना था, उद्बत्ती जैसा लगाना था, क्योंकि वो गंध बहुल होने के कारण जटामांसी वहाँ पर अच्छा काम करती है मन पर। साथ ही साथ उसे निशा तेल का अभ्यंग मैंने दिया था और कुछ मुनक्के खाने के लिए बोला था, ताकि जो बड़ा हुआ पित्त है, क्षारधर्मी उष्णता है, वो कम हो जाए। और अग्निहोत्र मैंने उसको बताया था, क्योंकि अग्निहोत्र की जो एक्टिविटी होती है वो सात्विक गुणधर्म को बढ़ाने वाली होती है। नेक्स्ट टाइम जब रुग्णा फॉलोअप के लिए भी रुग्णा नहीं आई, उसकी फादर आए, तब मैंने उनको सिर्फ बताया कि मदर को, बेटी को हेड मसाज देना है कोकोनट ऑयल से। इसके पीछे 2 उद्देश्य थे, स्निग्धता निर्माण करना और मदर का टच जो होता है वो सात्विकता निर्माण करने वाला होता है। प्यार जो होता है मदर का वो भी सात्विकता निर्माण करता है। 1 महीने के बाद रुग्णा खुद होकर मदर फादर के सिवाय मेरे पास चलते हुए आई और उसने जो बताया वो मुझे खुद को अचंभित करने वाला था। उसने बताया कि मुझे इरिटेशन नहीं होता है, किसी को मारने की इच्छा नहीं होती है और पहली बार मेरा जो पीरियड है वो विदाउट यानी सकष्ट रज प्रवृत्ति मुझे नहीं हुई है, जो कि उसने पहले मुझे नहीं बताया था। तो ये सभी जो लक्षण थे वो कम हो चुके थे। जब उसने मेडिसिन लेने की इच्छा जताई, इंटरनल मेडिसिन के लिए बताया, तब मैंने उसे कुछ मेडिसिन दिया है, जिसमें मैंने परिपाठादि काढ़ा दिया है। यहाँ पे देखिए, मैंने उसके बाद उसे मेडिसिन शुरू किया है। परिपाठादि काढ़ा जो शरीर में आप महाभूत बढ़ाता है, स्वर्णकैरिक, श्वद्रंष्टादि गुगुड़ और अर्नियो, कांति प्रभा का भी मैंने उपयोग किया है। जेएस और प्रवाल पिष्टि का उपयोग मैंने यहाँ पर रस धातु के लिए किया है। रस धातु भी क्योंकि मन के साथ बहुत ज़्यादा संबंध रखता है। मेरे सभी गुरुओं को मैं फिर से एक बार नमन करती हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am, for your very valuable work you have put up all over the scholars. मैं चेयरपर्सन और को चेयरपर्सन से विनती करता हूँ कि प्लीज़ वो स्पीकर को फेलिसिटेट करें। Thank you, sir. Now let's move on to next speaker. This is my privilege to call upon one of the youngest direct disciple of late Bruhatri Ratna Vaidyaraj Datar Shastri, Mr. Manoj Deshpande. He is doing 28 years, since 28 years he is doing Ayurveda practice in Pune and Barashi. He is specialist in Ayurvedic dermatology and he is member of Vaidyaraj Datar Panchabhuti Chikitsa Kendra Sangli.
He is putting before us a very important topic, diseases of Tej Mahabudha and its management. Sir, stage is yours. Thank you. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी थोड़ा एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा कि आप बुलेट ट्रेन में बैठे हैं, तो तैयार हो जाइए क्योंकि टाइम बहुत कम है और मेरे पास कहने के लिए काफ़ी कुछ है आपके पास, मगर टाइम के पाबंदी के कारण मैं मेरा थोड़ा AK-47 शुरू करता हूँ। डायरेक्टली आप स्लाइड नंबर 8 पर जाइए। जो पहले वाला सब भाग है वो सोवेनियर में है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैं कहना चाहता हूँ। वो नहीं है ऐसा कि वो यूजलेस है, बिल्कुल नहीं है। उसमें बहुत सारी टिप्स आपको हेतु, संप्राप्ति, लक्षण, चिकित्सा के बारे में मिलेंगे, मगर टाइम के कारण मैं डायरेक्टली आपका जो सबका इंटरेस्ट का जो विषय है उसके तरफ मैं जाना चाहता हूँ। तो ये जो पहला केस है वो है सीवियर हेडेक। तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, पेशेंट प्रोफाइल है यंग गर्ल फ्रॉम मराठवाड़ा रीजन। मराठवाड़ा है तो जंगल प्रदेश हो गया। जैसे कि हम शुरू में पेशेंट आते हैं तो हेतु खोजना हमको शुरू करना चाहिए। दातार शास्त्री हमेशा कहते थे, उनके कुछ मुंह के जो वाक्य है मैं यहाँ दोहराऊंगा, बताते कि कारणा वाचून कार्य अभिन्न है। ये उनका हमेशा कहना था कि कोई भी चीज़ के बारे में पहला कारण शोधना चाहिए, हेतु शोधने चाहिए, हेतु देखने चाहिए। तो ये यंग गर्ल थी, उसको सीवियर कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक हेडेक, हिस्ट्री ऑफ एंटेरिक फीवर एंड कामला, ये दोनों बड़ी तेज महाभूत की ज़बरदस्त बीमारी एक साथ उस लड़की को हुई थी। तो आप सोच लीजिए कि कितने बड़े पैमाने में तेज महाभूत उसके शरीर में बढ़ गया था। और दातार शास्त्री ने बताया है कि उनका परीक्षण हमको कैसे करना है। तो शरीर के ऊपर एक कृष्ण छाया छा जाती है ऐसे लोगों में जिनको तेज महाभूत की बीमारियां हुई है, जैसे रोमांतिका है, गोवर कांजना हम बोलते हैं, कामला है, विसर्प है। ये भयानक जो तेज महाभूत की बीमारियां हैं उनमें ये परिवर्तन हो जाता है। तो उनके पेरेंट्स जो उन्होंने भी एक सटीक हिस्ट्री दे दी कि ये लड़की पहले फेयर कलर की थी और ये 2 बीमारी के बाद उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क हो गया है। और ख़ास करके जो हाथ और पैरों की उंगलियां रहती है, ये जो टिप्स रहते हैं तो वो काले हो जाते हैं। ये भी एक लक्षण दातार शास्त्री हमेशा हर पेशेंट में देखते थे, तो ये लक्षण मुझको भी यहाँ दिख गया। तो डार्क फिंगर्स, टोज और उदर परीक्षण के बाद घन पार्थिव नाद, आकाशीय प्लीहा, वृक्क टेंडरनेस, बेदम वृक्क ऐसा बोलते थे दातार शास्त्री, यानी भयंकर स्पर्शासत्व। तो पैथोजेनेसिस, संप्राप्ति कैसी रखनी है, मैं आपको ये भी विद्यार्थियों को बताता हूँ कि कोई भी बीमारी हो तो अपने शब्द में आप संप्राप्ति लिखने का प्रयास जरूर करना, क्योंकि इसमें एक आनंद भी होता है और हमको वो बीमारी समझ में आ जाती है। चाहे वो संप्राप्ति चूकती है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से संप्राप्ति लगाना जरूरी है। तो यहाँ मैंने लगाई कैसी संप्राप्ति, लैटेंट हीट फ्रॉम प्रीवियस इलनेस, इंक्रीज्ड पित्त यानी तेज महाभूत, और उसका परिणाम हुआ है मस्तिष्क पर, क्योंकि रक्त का जो गुण है वो अनुष्ण है। रक्त जो है वो ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं है। तो अनुष्ण गुण जो है वो बिगड़ जाता है तेज महाभूत की प्रकुपित अवस्था में। तो ये बढ़ा हुआ तेज महाभूत जो है वो मस्तिष्क को सहन नहीं हो रहा था, इसके कारण तीव्र शिरशूल उसको शुरू हो गया। तो तेज महाभूत की चिकित्सा करना है, उदर परीक्षण के हिसाब से चिकित्सा करनी है, इसलिए फलत्रिकादि कषाय दिया, यहाँ गुग्गुल नहीं दिया क्योंकि जांगल प्रदेश है, तीव्र बद्धमल है, इसलिए कषाय देना जरूरी है यहाँ पर, इसलिए फलत्रिकादि कषाय दिया। निशा तेल, सभी शरीर पर तेज महाभूत का परिणाम हुआ है वो निकालने के लिए हमको अभ्यंग जैसा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, इसलिए निशा तेल जो अम्लधर्मी है उसका सिद्ध किया हुआ, कोकोनट ऑयल में सिद्ध किया हुआ तेल है वो लगाया। रजनी योग 10 और 2 बजे, ये पित्तकाल, अनिरुद्ध कुलकर्णी सर ने बताया कि दातार शास्त्री ने बहुत सारी टर्म्स कॉइन की है, बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। तो भेषज काल में 10 बजे और 2 बजे ये काल हमको टिपिकली पांचभौतिक चिकित्सा में दिखता है। तो उसी दौरान हम प्लीहा के लिए दवाई देते हैं 10 बजे 2 बजे, और श्वदंशादि गुग्गुल, ये दवाई देने से मात्र 15 दिन में उसका जो शिरशूल, तकरीबन 6 साल से वो लड़की 2 पेन किलर रोज खा रही थी, उसका शिरशूल पूरा के पूरा खत्म हो गया।
तो ये परिणाम हम पांचभौतिक चिकित्सा से ला सकते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि वो पेशेंट जो था इतना खुश हुआ कि ग्रामीण एरिया से लोग कितने उनके विश्वास होते हैं। तो ये मेरा प्रैक्टिस का पहला महीना था, मेरे गांव में बारसी में प्रैक्टिस कर रहा था। तो मुझको आश्चर्य हुआ की एक जीप भर के, बडी गाडी भर के, जिसको मराठी में म्हणतो आपण की दौंडी पेटवली त्यांनी गावामध्ये आणि सगळे डोकंदुखीचे पेशंट गोळा करून त्यांनी दवाखान्यामध्ये तो घेऊन आला। म्हणजे त्या दिवशीची माझी शिरश्चूलची ओपीडी त्या निमित्ताने झाली। तर हे पांचभौतिक चिकित्सेचं यश आहे। नेक्स्ट, आता पुढची नेक्स्ट केस है वो आईलिड ट्विचिंग, इसको मायोकाइमिया बोलते हैं। आप बोलेंगे कि ये क्या कंप्लेंट है, इतनी सी है, पलके झपकी तो क्या बिगड़ा, मगर ऐसा नहीं है। ये आदमी है और 60 साल का आदमी है। उसका प्रोफाइल जो है वो देख लीजिए, रिटायर्ड हाई रैंकिंग ऑफिस, कॉन्स्टेंटली ट्विचिंग राइट आईलिड। तो ये भी एक आयाम दातार शास्त्री ने दिया है कि जिस साइड को बीमारी हमको दिखती है उस साइड का जो अग्नि संस्था है वहाँ पर दृष्टि मिलती है। यानी राइट हैंड का अगर फ्रोजन शोल्डर है तो यकृत में, दक्षिण वृक्क में आपको विकृति मिलेगी, ऐसा ही लेफ्ट साइड में। तो ये राइट आईलिड में था, बुद्धिंद्रिय के ऊपर स्ट्रेन था, इरेगुलर ईटिंग हैबिट, अम्ल पित्त, कॉन्स्टिपेशन। तो हमको अप्रोच रखना क्या है ट्रीटमेंट का कि जो बढ़ा हुआ तेज महाभूत है, ये सब लाइफस्टाइल की वजह से, खाने पीने से, बुद्धिंद्रिय के जो ऊपर जो स्ट्रेस आया उसकी वजह से, इसलिए तेज महाभूत की चिकित्सा करना है, मलानुलोमन करना है, अम्लपित्त जो है वो कम करना है, और सबसे आखिर में है मांस धातु को बल देना है। उस हिसाब से परिपाठादि काढ़ा यह एक अत्यंत वीर्यवान दवाई है जो यकृत और प्लीहा दोनों के ऊपर काम करती है। यहाँ एक और सिद्धांत मैं बताने वाला हूँ जो पंच महाभूत का विलीनीकरण सिद्धांत बोलते हैं कि कैसे एक महाभूत दूसरे महाभूत का ग्रास लेता है। तो इसमें पृथ्वी और आप महाभूत, ये जो पृथ्वी है बद्ध मल है यानी कि पिंडित मल है, उसमें पृथ्वी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम देखते भी है कि पृथ्वी का घास जो है, पृथ्वी को पानी में वो पृथ्वी गल जाती है। यह सिद्धांत उपयोग में लाया जाता है। इसलिए यहाँ जो विरेचक दवाइयाँ हैं वो परिपाठादि काढ़ा, अनुलोमन तेल, ऐसी दवाइयाँ हैं। घनता पाण्यात विरते, ये दातार शास्त्री हमेशा कहते थे। तो इस सूत्र का यूज़ करते हुए ये ट्रीटमेंट किया है। बुद्धि इंद्रिय के लिए जटामांसी और बल्य योग, शतावरी अश्वगंधा शुंठ के साथ बनाया हुआ जो योग है वो बल्य योग दिया। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए माश संधव तेल का उपयोग किया है। तो सुरु सर ने भी सुबह के लेक्चर में बताया था कि महाभूत के भी 3 गुट होते हैं, संतर्पण, अपतर्पण, ये तो मालूम है, मगर बीच में जो रहने वाला जो है वो तेज महाभूत। दातार शास्त्री जी तेज को जमाई राजा बोलते थे। जमाई राजा को कितनी खातरदारी करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से पित्त दोष या तेज की चिकित्सा हमेशा करनी पड़ती है। तो ये बीच में वाला तेज जो रहता है वो जिसके तरफ झुकेगा उस तरफ से पैथोलॉजी में बदल आ जाता है। तो यहाँ अगर कोई सामान्य रूप से देखता है तो ये वात विकार करके भी हम चिकित्सा दे सकते हैं कि पलके झपकना, निमिष, उसके वात विकार की चिकित्सा दे सकते हैं। मगर क्योंकि पांचभौतिक चिकित्सा में हेतु देखते हैं, तो हेतु अगर मुझको तेज महाभूत के फेवर में जा रहे हैं तो तेज महाभूत की चिकित्सा देना मुझको ज़्यादा जायज़ समझा और उस हिसाब से मैंने ट्रीटमेंट दी। तो बाय द वे आपको तो गाना एक मालूम होगा कि आँख मारे ये लड़का आँख मारे। तो ये तो मूवी में कोई ठीक है तो लड़की भी उसको फ्लाइंग केस देगी, वो हीरोइन जो है, मगर ये आदमी पब्लिक प्लेस में, खास करके महिला वर्ग के सामने अगर उसकी ये जो पलके झपकना शुरू हो जाएगा तो फ्लाइंग क्या आ जाएगा, ये तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसी कुछ केस है कि एक आयाम है इसमें, इसलिए मैंने डाल दिए। नेक्स्ट है मूत्राघात, एक्यूट रीनल फेल्यूर। तो ये केसेस आयुर्वेद के तरफ ज़्यादा आते नहीं है, मगर ये मेरा भाग्य था कि ये मेरी मित्र की माँ जी थी। तो उन्होंने 3 दिन तक केटोरोलैक एक इंजेक्शन मालूम है आपको, डाइक्लोफेनेक से भी ज़्यादा पावरफुल मॉलिक्यूल है, उन्होंने 3 इंजेक्शन ले लिए और 2 हफ्ते के लिए उन्होंने पेन किलर ले लिए रोज। तो इससे डिक्रीज्ड यूरिन, रेडिश यूरिन, हाई बीपी, क्रिएटिनिन 4 पे चला गया और उनको डायलिसिस की सलाह मिल गई। तो पैथोजेनेसिस कैसे रखा है, स्ट्रॉन्ग क्षार केमिकल इन पेन किलर्स इंक्रीज्ड तेज महाभूत अफेक्टिंग किडनी ग्लोमेरुलाई। दो रक्त मेद प्रसादात वृक्क, ये हम जानते हैं
वृक्क की जो उत्पत्ति है उसमें रक्त धातु का प्रसाद भाग है, तो वहाँ जो ग्लोमेरुलाई है उनमें जो स्निग्ध गुण है मेद का वो कम हो जाता है। इसके कारण किडनी का जो रीअब्सॉर्प्शन है वो ज़्यादा बढ़ता है और टॉक्सिन्स किडनी में बढ़ जाते हैं, खून में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ श्वदंष्ट्रादि गुग्गुल ये दवाई ज़्यादा मात्रा में यानी कि हर 2 घंटे के बाद 125 mg इस मात्रा में धान्यक क्वाथ के साथ दी है। धान्यक जो है विषघ्न आमपाचक मूत्रल, ये टिपिकल उसके गुण हैं। दातार शास्त्री जी के पास जब भी कोई पेशेंट फाइल लेके आते थे बड़ी बड़ी, तो पहले हफ्ते में या तो वो जटामांसी दे के उनको भेजते थे अगर बुद्धिवादी है तो, नहीं तो धान्य क्वाथ दे के भेजते थे कि 8 दिन पहले धनिया का पानी ले लो, फिर जाके मुझको उदर परीक्षण ठीक तरह से समझ में आएगा। क्योंकि क्या है कि पोट बोलत नहीं, दातार शास्त्री म्हणायचे कि जब ये क्षार वाली दवाई ज़्यादा हम लेते हैं, स्टीरॉयड, पेन किलर, एंटीबायोटिक ज़्यादा लेते हैं, तो उदर परीक्षण की जांच, इंटरप्रिटेशन ठीक तरह से नहीं हो पाता है। तो ये धान्य क्वाथ इतना बड़ा ड्रग है, मैं बताता हूँ कि और 1-2 केसेस मेरे यहाँ और भी हो गई कि जिसमें एक्यूट रीनल फेल्यूर आयुर्वेद से गोक्षुरादि गुग्गुल से हम दुरुस्त कर सकते हैं। क्योंकि गोक्षुरादि गुग्गुल जब बनाते हैं, राव सर की सुबह हमारा डिस्कशन हुआ कि औषधिकरण कितना इंपॉर्टेंट है। जब हम श्वदंष्ट्रादि गुग्गुल बनाते हैं, 2 किलो अगर हमको बनाना है तो उसमें 64 लीटर पानी जो है वो उसमें पचन होता है। तो आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी राशि में आप महाभूत उसमें है। इसलिए जहाँ भी आपको आप महाभूत बढ़ाना है वहाँ पर गोक्षुरादि गुग्गुल आप आँख बंद करके दे सकते हैं। नेक्स्ट, ये केस है जीर्ण उदावर्त। ये लड़का जब भी मेरे वेटिंग में आता था तो मैं समझ लेता कि ये लड़का आ गया है, क्योंकि इतनी बड़ी आवाज़ में वो डकार देता था कि अंदर तक वो मुझको सुनने में आता था। तो यंग बॉय, लाउड बेल्चिंग, एक्सट्रीमली क्रूर कोष्ठ, रेस्टलेस, बद्धमल, वृक्क उभय स्पर्शास्वत, इससे परीक्षण है। ऑब्वियसली उदावर्त इसका डायग्नोसिस हो गया। विहार के बारे में उसको मैंने जो सलाह है वो देनी थी वो दे दी। यहाँ भी पंचमहाभूत विलीनीकरण सिद्धांत के अनुसार ये अनुलोमन तेल, परिपाठादि काढ़ा, यह दवाई उसको दी। और यहाँ जो अग्नि महाभूत है वो फैसिलिटेट हुआ है मल विरेचन से। अग्नि को अप्रोच हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, तो कभी कभार अनुलोमन विरेचन के जरिए भी हम तेज महाभूत को कंट्रोल में ला सकते हैं। नेक्स्ट, क्रॉनिक प्रतिशाय। तो ये वैसे देखें तो सिंपल केस है, हर वैद्य के पास ये केसेस आती ही रहती है, मगर जब भी हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाता है, दवाई देने से भी बार बार तकरार होती रहती है, तो जाके ये पेशेंट के लिए नहीं तो वैद्य के लिए भी ऐसी केसेस हेडेक बन जाती है। सीधी सादी सर्दी भी हमको कभी कभी हमारा सर दर्द बन सकती है। तो यही केस है, 8 से 10 साल से उसको क्रॉनिक राइनाइटिस था, हिस्ट्री ऑफ सीवियर मिजल्स। ये हेतु आप जान लीजिए। प्रिडोमिनेंटली कफ वात शामक दवाई हम खास करके प्रतिशाय में देते हैं। त्रिभुवन कीर्ति देंगे, पारिजात देंगे, श्वास कुठार देंगे, नारदीय देंगे। ये सभी दवाई खाकर उसको टेम्पररी रिलीफ मिलता था, कभी ये दवाई खाने से बीमारी बढ़ती भी थी। तो ये ऑब्जर्वेशन जब मैं कर रहा था, उदर परीक्षण कर रहा था, तो एक सूत्र जो है वो दातार शास्त्री का मेरे कान में गूंज गया। वो बोलते थे कि तस्योष्मणा द्रवो धातु धातुर धातुर प्रसिच्यते। यह एक चरक चिकित्सा रक्तपित्त का जो अध्याय है उस वहाँ का एक श्लोक है। यह श्लोक भी आप पक्का ध्यान में रखिए। ये इस तरह की जो संप्राप्ति है बहुत सारे बीमारी में देखनी पड़ती है। तो इसकी एक एनालॉजी मैं आपको समझाता हूँ कि ये सूत्र क्या है। तो जब भी कोई चूल्हा जल रहा है, ऐसा आप समझ लो कि बड़ा बड़ा भड़ाग्नि चल रहा है, और चूल्हे के पास में कोई लकड़ी हम रखते हैं, तो लकड़ी अग्नि का संपर्क में नहीं भी आती, फिर भी लकड़ी स्विन्न हो जाती है। थोड़ी देर में उसको पानी छूटता है। क्यों छूटा? क्योंकि जो हीट है वो लकड़ी को सहन नहीं हुई। तो यही संप्राप्ति शरीर में होती है। जब भी कोई लीन तेज महाभूत शरीर में रहता है तो वो हमारे मांसादि धातु को स्विन्नत्व लाता है, और शरीर के प्रोटेक्शन के लिए शरीर पानी पैदा करता है, आप महाभूत बढ़ाता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, शरीर की कोई ब्लड वेसल जो है फूटेगी, रक्त प्रवाह हो जाएगा। ये कंट्रोल करने के लिए शरीर का ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, मगर कभी कभार उससे प्रतिशाय जैसे परिणाम हमको दिखते हैं। इसलिए यहाँ तेज महाभूत की चिकित्सा मैंने की, परिपाठादि, रजनी, हरड़ू। तो आप बोलेंगे कि हर बीमारी आप ऐसे ही दवाई क्यों देते हैं? तो हमारा भी यही सवाल था दातार शास्त्री जी को कि अरे आप हर बीमारी को इतनी दवाई देते क्यों हैं? मगर जब हम अभी 25 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको अभी थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है कि ये छोटी छोटी दवाई भी कितनी वाइड रेंज की है। नेक्स्ट, ये पॉम्फोलिक्स का केस है। मैंने पहले
प्रेजेंट किया है, ये तो एक बहुत ट्रबलसम बीमारी है। एक सॉर्ट का एक्जिमा का एक प्रकार है जिसमें हाथ और पैरों में ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, दारण हो जाता है, दाह हो जाता है, और ये साल साल तक लाइफ लॉन्ग पेशेंट को ये साथ देती है बीमारी। तो यहाँ भी पेशेंट था ओसीडी का। ओसीडी के कारण उसको हमेशा हाथ धोने की आदत थी, डिटर्जेंट और बाकी अल्कलीज, बाकी ये अपना सैनिटाइज़र, इस कारण तेज महाभूत बढ़ गया। दवाई वही दी है, बस बाद में थोड़ा क्लेद कम होने के लिए, क्योंकि स्रावाधिक्य है तो वहाँ रुक्ष और तिक्त शीत गुण वाला जो कुपिपक्व रसायन है सुवर्णराज बंगेश्वर यहाँ यूज़ किया है, और इससे उसको काफ़ी फर्क आया है। तो नेक्स्ट केस है हाइपरथायरॉयडिज्म की, मगर टाइम के पाबंदी के कारण ये मैं सामने आपको नहीं रखूँगा, क्योंकि ये तो एक मूर्तिमंत तेज महाभूत का ही उदाहरण है। मगर उसका एक मैं रिजल्ट बताता हूँ कि जिसको प्रोप्रानोलॉल लेके उसका हार्ट रेट 120 था, वो सिर्फ आयुर्वेदिक दवा से प्रोप्रानोलॉल बंद करके भी 80 तक आ गया। ये अचीवमेंट इससे मैंने की है। और नियोमर्काजोल जो है उसको लगता है हाइपरथायरॉयडिज्म में, वो अभी मैंने कम नहीं किया है, इसलिए ये केस नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट, तो ये जो बीमारियों की लिस्ट दी है, वो लिस्ट मेरे प्रैक्टिस में अभी तक जो अनुभव आए हैं कि वो जो तेज महाभूत बढ़ने के कारण ये बीमारी होती है, ये सभी बीमारी में कोई एक दो केस मेरे पास तो ज़रूर आए हैं, बाकी तो एसिडिटी वगैरह केस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऐसे केस तो काफ़ी आ चुके हैं। उनमें भी तेज महाभूत का कंसिडरेशन करके हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और लास्ट स्लाइड मैं ले लूँगा, 17वीं स्लाइड 17। ये मुझको एक बहुत अलग थॉट है जो आपके साथ शेयर करना है। वो हम प्रैक्टिस में हमेशा करते हैं। हम चिकित्सा करते हैं जाठराग्नि की, कायाग्नि की, तो उसमें प्राइमरी जो बीमारियां हैं वो ठीक तो हो जाती है, मगर आयुर्वेद के पास जो भी लोग आते हैं वो एक अलग पर्पज़ लेके आते हैं कि जिनको पुनर्भव नहीं होना चाहिए, कि तो अपुनर्भव के लिए आयुर्वेद के पास आते हैं। तो हमारा यह कर्तव्य रहता है आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर होने के कारण कि हम जाठराग्नि से आगे जाकर धात्वाग्नि और भूताग्नि का भी अगर सोच करते हैं तो हमारी ट्रीटमेंट जो है और डेप्थ में जाएगी। तो उदाहरण मैं देता हूँ और मेरा मंतव्य खत्म करता हूँ। कुष्ठ रोग की चिकित्सा हम कर रहे हैं, विचर्चिका की केस है, उसमें हमने ट्रीटमेंट दी, लक्षण सब कम हुए, मगर हम जानते हैं कि कुष्ठ रोग जो है वो वारंवार होने की उसकी टेंडेंसी रहती है। इसलिए जब तक हम रक्त धात्वाग्नि पर दवाई नहीं देते तब तक वो बीमारी अपुनर्भव हमको मिलती नहीं है। इसलिए विद्रुम किट्ट यह एक योग है, ऐसा कोई भी आप आपकी प्रतिभा से यूज कर सकते हैं, मगर यहाँ विद्रुम और किट्ट यानी मंडूर और प्रवाल, इसका एक योग है, वो बहुत ही बेहतरीन काम करता है रक्त धात्वाग्नि पर खास करके। और दूसरा एक थॉट है भूताग्नि। भूताग्नि यानी जैसे कि धातु के अग्नि है वैसे भी भूतों के भी अग्नि है, पंच महाभूतों के अग्नि है। तो दातार शास्त्री जी का एक पाठ है वज्राग्नि वरा, जो टंकण मारित अभ्रक प्लस त्रिफला वरा, इसका एक कॉम्बिनेशन है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसा एक प्राण घातक बीमारी रहती है उसमें, कि डेथ इज़ द रूल इन दिस डिसीज, उसमें पेशेंट बचते नहीं हैं। अगर आप देखते हैं तो पृथ्वी महाभूत इतना स्ट्रांग रहता है कि लड़के के अगर आप थाइस देखेंगे, काफ देखेंगे, कि तो जैसे पहलवान के मसल है वैसे मसल उसके दिखते हैं, मगर उसमें ताकत तो बिल्कुल होती नहीं है। वो लड़के को खड़ा होना भी मुश्किल होता है खुद के बलबूते पर। तो ऐसी कंडीशन में पृथ्वी महाभूत जो है वो विकृत बढ़ गया है, क्योंकि अग्निमांद्य होता है तो उस धातु की, उस तत्व की विकृत वृद्धि होती है। ये समझकर वहाँ वज्राग्नि वरा जैसी दवाई हम यूज़ करते हैं तो उस भूत का, उस महाभूत का अग्नि नॉर्मलाइज हो जाता है और आगे जाके ट्रीटमेंट में फास्ट रिजल्ट ऐसे हो जाते हैं। तो आयोजका का मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि मुझको उन्होंने मेरी केसेस जो है, मेरा अनुभव है, आपके सामने रखने के लिए परवानगी दी है। तो एक ही लास्ट में श्लोक बताता हूँ कि असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। जो अंधकार रूपी अज्ञान है उससे ज्ञान रूपी प्रकाश के तरफ हम सभी की तीर्थ यात्रा ऐसी ही चलती रहे, ये दातार शास्त्री जी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ और आपकी विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। Thank you, Vaidya Manoj, for your very informative and great knowledgeful presentation. I request Mr. Chairperson and Co-Chairperson to felicitate Vaidya Manoj, sir.
Thank you, sir. Friends, it's my honor and privilege to call upon the stage a very, very dynamic personality from Panchabhutik Chikitsa world. He is none other than Vaidya Ashok Wali, sir. He is MD and PhD in Dravyaguna. He is a most senior disciple of Adaraniya Vaidyaraj Datar Shastri. He is president of Vaidya Datar Panchabhutik Chikitsa Kendra. He is ex-principal Sri Danga Ayurved College Ashta. He has got the best teacher award from MUHS. So today, be ready to grab a sheer knowledge because he is going to share with us the intrinsic nature of plants. Thank you. Respected chairperson and co-chairperson of this session, and all the audience. Next. My dear friends, I'm going to dedicate this lecture to my guru, Datar Shastri. Next slide. My topic is intrinsic nature of the plants with special reference to the Panchabhutik Chikitsa. Next. Sarva Dharvam Panchabhutikatam. That is what exactly the base of the Ayurveda. You see, next slide. You see, these are the four things. Next. These are the plants, animals, and sea material, and the minerals. These are the four things which having a Panchabhutikatvam of this area. Next slide. See, Sarva Dharvam Panchabhutikam. According to the Ayurveda, plants adopt the properties of the Panchamahabhuta and are depend upon the dominancy of the Mahabhuta. All living belongs to the combination of the basic elements, including the plants. Next slide. See, plants grows in the nature and they matches with the changes in environment. My guru told me that these properties can also changes with the effect of Desha, Kala, Rutu, Bhumi, Jala and Hawaman, and this type of change in properties of the plants is known as intrinsic nature of the plant. No doubt about the Guna, Rasa, Virya, Vipaka and Prabhava. These are the basic of the Dravigun. But with this intrinsic nature of the plants is also very important, and this intrinsic nature of the plant is mentioned as Swabhava by Datar Shastri. Along with the Guna, Rasa, Virya, Vipaka and Prabhava, we must consider the Swabhava of that particular plant which helps to select the perfect plant for the perfect chikitsa of any disease. Next, you see what is Swabhava. These are the references from the Ayurvedic literature. Swabhava means the Sahaja Gunaha, Swabhava means Prakriti, Swabhava means Prakriti Bhavaha, Swabhava means Gunaha, Nisarga Gunaha. Next slide. You see, can you see this Albizia Lebek, what we call that is the Shirish? At the evening, the leaflets are totally closed. And at the morning, the leaflets are totally open. You see that is the Brahma Kamal. Why the petals are open exactly at the midnight? You see that is the Parijat. Why all the flowers are dropped down early in the morning. And you see the Ratrani. Why the smell it only at the night. And this is what we call that is the Nothopoditis pneumonia, a very bad smell of the flower. What we call that is the Narkya. Next slide. So this is what we call that is the Sahaja Guna. Next, you see Prakriti Bhavaha. These are the plants, and each plant having 3 leaflets or the 3 leaves. One is the Alophilus cobi, second is the Butea monosperma, third is the Bilva, Eagle marvalis, fourth is the Purpurea tuberosa, and last is the Vitex nigundo. You see, but the 3 leaves having a anatomically distance. Next slide, it is called as the Prakriti. This you see, you might be
known very well about that, the Lajjalu. Next slide. The, what we call that is the Prakriti Bhava. Next. And this is already done by this, the research by the Jagdish Chandra Bose in 1937. The plant having a mind, plant having a sensation, plants having the emotions. But my guru, again he said that the Swabhav, or what we call that is the Nisarga Gun of that particular plant is very important. And one more important, next slide, you see that the live plants matches early with the live body. This is what the concept of the Datar Shastri. Swabhav is depend upon Desha, next Kala, next Bhumi, soil, that is the Rutu, season, that is the Jala, water, and the weather, that is the climate. These are the 6 things that differs from the plant. Already I have mentioned that the climate change that affects the plants also. And this is very important. Next slide. See, how to know the swabhav of that particular plant. To know the swabhav of that particular plant, you have to make a friendship with the plants. That is very important. You have to go near the plant. You have to see the plants. You have to interact the plants. Then and then you know what exactly the swabhav of that particular plant. Next slide. You see, Panchamahabhuta. Next slide. Sarva Mahadravyam Panchabhautikadam. Already it is mentioned. Next slide. You see, this is the Agni. That is the balanced state with it. The natural direction of the Agni is upward. It is already mentioned in the Ayurveda. But you see in the nature, next slide. If you see in the nature, you see, this is the plant, and the direction of the Agni is upward. Digestion is very important in the plant also. Next slide. So many plants are there. The younger leaves, they are red or the brownish in color. Why? Because of the Agni Mahabhuta. There is need of the digestion of the air. That is very important. Terminalla bellerica, Ficus bengalensis, Ficus religiosa, so many plants. Next slide. And see what exactly the use of that particular plant. You see the stages of this particular leaves. First is the brownish, then it turns into the greenish, and lastly again it comes to the brownish. That is very important. Next. Datar Shastri already mentioned that is the Agni are of 2 types. One is the Ksharadharmi and second is the Amladharmi. Already so many talks on this topic is over. Next slide. So these are some examples. For example, Chitrak, Ksharadharmi, Rason, that is also Ksharadharmi. That is root of the Piper longum, that is Ksharadharmi. Piper longum fruit, that is Amladharmi. That is Gingiber officinalis, that is the Ksharadharmi. And Adrak, that is of the Amladharmi. Next slide. And so, you see the Swabhav and Panchabhuti concept. Next slide. You see, this is next, Ginger officinalis. One single plant, but 2 different stages of that particular ginger. That is very important. Adraka, in general, it is hot, but it contains some amount of the water. That is, it contains some amount of the Jalamahabhut. So, the specific property is Ardra, and its origin is in rainy season, where naturally Amla Dharma is dominant. So, this Adrak is Amla Dharmi, where the Sunti is the Ksharadharmi, because it having no any water content at all. Next slide. You see, this is the Jambu or Syzygium communi. Use the inner part of the plant. Datar Shastri is very specific which part should be used. That is very important. He already mentioned, you use the inner part of the Jambu. That is very important. So, you see, why the inner part they are used? Some fibers materials you can see in the inner part. And that fiber materials are very useful, especially in the uterine diseases. So, this is very useful and particular about this plant material. Next. This is Vamshalochana. You might be know, bambus, the product of the hollow space of the bamboo means it origin in the Akash Mahabhut. It's Ruksha, Lagu and Khara in nature, so it works as a Jala Shoshaka, means it sucks the kapha from the Akash. Already Datar Shastri mentioned it is from the Madhur Varga as it have a Vrishya Karma. This is the only drug which sucks the kapha even though it is Madhura. This is mentioned by the Datar Shastri. So in all Sitopaladi Churna,
or in the Talisadi Churna, this Vangsha lotion is used because of this only. This what late Appa called that is the Swabhav. Next. This is Jatamausi. What we call that is this is Himalayan plant. Two words are very important. Some plants, the Veer is mentioned the Sheath, and some plants, the Veer is mentioned the Him. There is a difference between Sita and Him that is very important. This is Him. It comes from the Himalaya. So it is very cold as it compared to the other plants. So hairy roots are Parthiv. Ghanata, Gurutva and Sugandhi are the Parthiv properties. Charaka mentioned the Brahmahari Gana and the property in the Savnyastapana. So with the help of Sugandhi and the Snigdha property, it works on the Buddhi Indriya to balance the knowledge. So it is very important why especially Jatamausi is single drug as a font used in the Buddhi Indriya Chikitsa. Next, this is one more point, that is the Padma Kasta, what we call that is the Prunus cirrhoides. This is also Himalayan plant, no doubt. It is Sugandhi, so it is Parthiv in nature. Naturally, the stem is very hard. It is very difficult to make its powder manually. It's from the Ghanata, Gurutva and Sthirata. So many modern medicines, hormonal medicines or number of abortions or curatives develop the sensitivity to the uterus. To strengthen the uterus, Padma plays very important role as it works as the Garbhastapana, which is already mentioned in the Granthas. But it is a Parthiv in nature. So let Appa use this in the Asti Dhatu, especially in the Asti scale, mainly in the cervical and lumbar spondylosis. Next. This is Kadali. You might be know very well. It is very sheath in nature. Next slide. You see the inner part, it totally contains the water. Totally Jalamahabhut. This is the transverse sections of this stem. You see the water is pouring from this. These are all the water channels in this plant. To reduce the heat from the body, mainly from the Rakta Dhatu, Kadali Sattva is the drug of choice. It is useful in the Daha, especially in the burning micturation, burning of eyes, Hastapada Daha, Anga Daha, etc. This is very useful. Next slide. You see, this is Haridra, already it is mentioned. It is Amladharmi. Next slide. So this is, especially it is useful in reducing the Ksharadharmi formed by the smallpox, chickenpox or the measles. Already so many cases, Manoj already discussed. Next slide. This is what we call that is the Dhamasa. It is comes from the rainy season. So it came from the Jalvat portion and sir, mentioned in the Gudichadi Varga means it having a sthirata. It is Kapha, Meda, Mada and Bhranti Nashaka. Charaka mentioned this dravya in Brahmahari Gana also. Appa used the specific plant this in the Shwa. That is very important. Next slide. You see, this is the what we call that is the Acaranthus aspera, Apamarga. As it is Ksharadharmi, it does the pachan. Let Data Shastri mention that this drug turns the sticky substances like Gugula into the liquidy form because this having a dominancy of the Ksharadharma. Next slide. This is what the call that is the Maka or the Iplicta alba. It is the Ksharadharmi in nature. You see, this is not mentioned, but in the Dravyagun Shastra, it is mentioned, it works as the Rasayana and it is the Dantya. But which stage it should be used? And Data Shastri mentioned that overdose of the Alma Dharma in the body, when reaches up to the Asti Dhatu, the symptoms related with the teeth and gum, like the gum inflammation and bleeding, etc. At this stage, Bhungaraj works very well as it is mentioned as the Dantya and the Rasayan. This is particular stage. That stage we have to use not only for the hair oil. This is very important, Dantya and the Rasayan. Next slide. Harulu, that is very common weed. Next slide. You see, the weed naturally comes in rainy season, so it originates in the Amladharmi but converted into the Ksharadharmi. Especially this plant from the Konkan region is of the more Ksharadharmi, Desha Vichar. That is very important. So it's useful in the urinary system to minimize the side effect of the modern medicine on the urinary system like Mutralpata and Daha. Next slide. This is what we call that is the Komad Nakhi, Kukud Nakhi Gugul is the product of the Panchabhautik Chikitsa.
it is the fern and the rhizomes are very useful. You see, less amount of the water is required for this plant. Each and every fern, that is very important. And this is found in the Western Ghat region. It's kapha and medanashak, mainly used in the enlarged tonsils and the fatty lobules. This is what we call, that is the lekhan karma. That is very important. Next, you see, come to the discussion. Along with the guna, rasa, vipaka, virya and prabhava, think about the sabhava to rule out the specific property of that plant. To know the sabhava, desha, kala, rutu, bhumi, jala and hawaman are very important, but making friendship with the plants is most important with the help of to find the specific property. This helps for the which stage of the disease, which plant is suitable for the perfect line of treatment. Next slide, come to the conclusion that to know the instinctive nature of the plants, that is sabhava, make a friendship with the plants, meet and interact with them, and on keep good relation with the plants, try to understand them. The specific properties is depend upon the close observation of the plants. Observe it and go for the imagination and use it. To know the specific property of the plant, the intrinsic nature is very valuable because it works in nectar. It is useful from the perfect plant, for the perfect chikitsa of any diseases. So my dear friends, observation and then imagination of the plants is very important. This is what the conclusion of the intrinsic nature of the plant. Next slide. You see, plants do not speak, but they whisper. My dear friends, plants do not speak, but they whisper. Therefore, we have to be real close to understand them without jealousy. So with this, I'm going to conclude my lecture. Thank you. Thank you very much. थैंक यू सर. सर, आपका लेक्चर सुन के मुझे कुछ याद आ रहा है. संत तुकाराम महाराज जी का एक अभंग है. सद्गुरु वाचोनी सापडेना सोय, धरावे ते पाया आधी त्याचे. आपणा सारिखे करीती तात्काळ, नाही काळ वेळ मग त्याचे. जो अप्पा जी थे, उनका वनस्पतियों के तरफ देखने का, मनन करने का एक बहुत ही अलग तरीका था. और वही चीज़ जब वाली सर में देखने आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक ज़बरदस्त गुरु कृपा उनके ऊपर है, और इसी कृपा के चलते वो ऐसा सोच सकते या वनस्पति की तरफ देख सकते. सर, वी आर सो मच थैंकफुल टू यू फॉर योर दिस thought provoking and insightful presentation. I request Honorable Chairperson and Co-Chairperson to felicitate Wali sir. थैंक यू सर. इसके बाद में इमीडिएटली पैनल डिस्कशन शुरू हो रहा है. सॉरी, बिफोर पैनल डिस्कशन आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल चेयरपर्सन टू ग्रेस द डायस एंड कंक्लूड द सेशन. सावंत सर. Good afternoon, everybody. दोपहर के सेशन में मैंने बहुत सारे आज तक जितने भी वर्कशॉप सेमिनार्स अटेंड किए हैं. आई सॉ द मैक्सिमम ऑडियंस आफ्टर लंच, और कोई सोया नहीं है लगभग, एक दो छोड़ के. सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर पेशेंट हियरिंग. और अप्पा जी का दातार शास्त्री, my native place is Sangli, so that's why I am quite connected to sir. तो and it is quite practical. पांचभौतिक चिकित्सा जो है, आयुर्वेद शास्त्र अपने आप में प्रैक्टिकल है, लेकिन पांचभौतिक और थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल पे है और नेचर की तरफ जाता है.
तो आज के दोपहर के सेशन में सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी, ही प्रेजेंटेड हिज वर्क दैट स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअलनेस दैट ओवरलैप्स, इसके बारे में वो जो उन्होंने कहा पंच महाभूतों के बारे में, और वो जो उनका वैदिक विजडम है उसको भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, पांचभौतिकत्व को भी एक्सप्लेन किया। और मैजेस्टेरिया वाज द न्यू वर्ड which many of us come to know for the first time. The second, that was good presentation, sir. Second one, Dr. Megha Jagtap मैडम जी थी, उन्होंने मानस विकार पे जो उनके एक्सपीरियंसेस दिए, शायद उनको थोड़ा सा टाइम कम मिला या थोड़ा हरी करना चाहिए, तो 3 ही केसेस उनको एक्सप्लेन करने को मिले। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के बारे में उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कैसे होगा, पांचभौतिक चिकित्सा में कैसे कर सकते, उसका भी उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से सबके सामने प्रेजेंटेशन दिया। एंड द नेक्स्ट वन वाज मनोज देशपांडे सर जी, मोर प्रैक्टिकल, मोर अग्रेसिव, एंड पांचभौतिक चिकित्सा में अपने आप एक अग्रेशन है, वो उनके प्रेजेंटेशन में था। और टोटल 6 केसेस जो दिए, एवरीवन वांट्स टू नो सम ड्रग, हर कोई चाहता है कि कोई ड्रग मिले, कोई उसकी मात्रा मिले, कोई अनुपान मिले, कोई डिफ़िकल्ट व्याधि में, डिफ़िकल्ट कंडीशन में मिले। सो देयर वर सो मेनी ड्रग्स, सो मेनी कंडीशंस related to Tej Mahabhut. So it was very good presentation, sir. And the last one and the best one, experience overlaps everything. तो सबके ऊपर जो एक्सपीरियंस था डॉक्टर अशोक वाली सर का, उन्होंने जो ये स्पिरिचुअलिटी से जो शुरू हुआ था उसको आखिर में ख़त्म करते वक्त वनस्पतियों का रसवीर्य विपाक प्रभाव को छोड़ के भी स्वभाव जो है उसका स्वभाव परमोवाद जो है बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। सो आखिर में कंक्लूड करते वक्त आज के प्रेजेंटेशन में आप सभी को बड़ी अच्छी experiences, it is extract of experiences of these people sitting in first row. First row में हमारे जोगड़ेकर सर है, द ग्रेट सर देशमुख सर है, मुंबई से आए हुए वैद्यराज है, और बड़े सर है हमारे सुरु सर है। तो सभी गुरुजनों को के साथ बैठ के आपको ये जो नॉलेज शेयर करने के लिए मिला, ये अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी to chair this session. Thank you one and all. थैंक यू सर। इसके साथ ही ये सेशन, सेकंड साइंटिफिक सेशन यहाँ ख़त्म होता है।